کہتا ہے کہ انسان ترقی کر گیا، قسم ہے زمانے کی کہ انسان گھاٹے میں ہے۔ اس لیے اپنے آپ کو تکبر اور غرور میں نہ گزارنا۔ تم کیا سمجھتے ہو کہ تم نے ساری کتابوں کا مطالعہ کر لیا ہے؟ تم کیا سمجھتے ہو کہ ایک مسلمان کے لیے جتنے علم کی ضرورت ہے تم اس قدر علم حاصل کر چکے ہو؟ تم کیا سمجھتے ہو؟ نہیں پتا۔ حضرت سفیان ثوری سے کسی نے پوچھا حضور عالم کون ہے؟ کہا جب تک پڑھتا رہے وہ عالم ہے، جس دن اس نے سمجھ لیا کہ میں عالم ہو گیا اس دن وہ جاہل ہو جاتا ہے۔ یقیناً آج ہمارا سماج، ہمارا معاشرہ جس جانب بھگتا چلا جا رہا ہے، کبھی آپ نے سوچا آج ہماری اولادوں کی راتیں سٹہ بازی میں گزر جا رہی ہے؟ آج ہمارا نوجوان شراب خانے کی طرف بڑھ رہا ہے، آج ہمارے نوجوانوں کے اندر عیاشیاں کٹ کٹ کر بڑھتی چلی جا رہی ہے، ماں باپ بڑھاپے میں ستائے جا رہے ہیں، پڑوسی کی مار جھیل رہا ہے، سماج برائیوں کی دہلیز پہ قدم رکھ چکا ہے۔ ایسے عالم میں ضرورت ہے ایک اچھے معاشرے کی تشکیل ہو۔ یہ جلسے کیوں سجائے جاتے ہیں؟ یہ جلسے صرف اس لیے نہیں سجائے جاتے ہم جلسوں میں آئیں گے، نعرہ لگائیں گے اور خوب کھڑے ہوں گے، واہ واہ کریں گے، اپنے گھروں کو چلے جائیں گے، بلکہ یہ جلسے اس لیے سجائے جاتے ہیں تاکہ سماج میں پریورتن ہو، سماج میں انقلاب آئے، لوگوں کے اندر نئی بیداری ہو، لوگ جب یہاں سے جائیں تو ایک نئی زندگی لے کر جائیں، دلوں میں حوصلہ جاگے، دلوں میں حوصلہ بیدار ہو۔ آج صاحب یہی وجہ ہے مرد آدھے گھنٹے ایک جگہ متحد ہو کر نہیں بیٹھ پاتے، لیکن عورتوں کو دیکھیں جہاں بیٹھتی ہیں وہاں متحد ہو کر کے بیٹھتی ہیں، اتفاق اور اتحاد کے ساتھ بیٹھتی ہے۔ لیکن مردوں کی پوزیشن یہی ہے، جب مرد مل کر کے اپنی ایکتا اور اپنی ایک محفل کو نہیں سنبھال پاتے تو آج کا مرد بھلا گھر کیا سنبھالے گا؟ پھر اسے یہ امید ہو کہے کہ ہم اپنی عورت سے زیادہ طاقتور ہیں، پھر ہمیں حاکم بنا دیا جائے۔ صاحب یہ کبھی تو تصور بھی کر سکتا ہے جب ایک مجمع میں بیٹھ کر ہم اپنے آپ کو نہیں سنبھال پائے اور اٹھے اور مصطفیٰ جان رحمت کی محفل سے اٹھ کر کے چل دیے۔ اسلام کے مقدس نوجوانوں تجھے کیا پتا ہے؟ آج میری گفتگو ہوگی، آج صاحب آپ دیکھ رہے ہو بڑا ترقی یافتہ زمانہ ہے۔ پوچھ لیجئے ڈاکٹر اختر پروازی حبیبی نہ جانے کتنی دوائیوں کا نام بتا رہے تھے، کتنا اینٹی بائیوٹک گنا رہے تھے، لیکن آج جب پوچھیں گے سماج کو کیا چاہیے تو ہر ڈاکٹر بولتا ہے اٹھنا تو ہاتھ دھونا، کسی سے ملنا تو ہاتھ دھونا، کہیں پہ بیٹھنا تو اپنے جسم کی صفائی کرنا۔ لیکن صاحب یہ ساری باتیں آج ہو رہی ہے، لیکن آپ پوچھئے نرسری سے لے کر پی ایچ ڈی تک باضابطہ طور پر صاف صفائی کی کوئی کتاب بھی ہے کیا؟ کسی کتاب میں پڑھایا جاتا ہو کہ پاؤں کیسے دھولا جائے گا، ہاتھ کیسے دھولا جائے گا، ناک کی صفائی کیسے ہوگی؟ صاحب نہ کوئی مرد پڑھتا ہے، نہ کوئی بچہ پڑھتا ہے، نہ کوئی عورت پڑھتی ہے، نہ کوئی ڈاکٹر اور سائنٹسٹ پڑھتا ہے۔ میٹرک تک کی پوری کتابیں پڑھ جائیے، باضابطہ طور پہ صفائی کا کوئی بیان نہیں ملے گا۔ اے مسلمانوں، 1450 برس پہلے اللہ رب العزت نے قرآن عظیم کی شکل میں جو تجھے دولت عطا ہوئی، تجھے کیا پتا؟ آج صاحب اس وقت لوگ کہتے تھے کیا مولانا جب بھی اٹھائیے آپ لوگوں کے مدرسے میں جائیے تو کتاب کوئی بھی ہو، قانون شریعت اٹھائیے طہارت کا بیان، انوار شریعت اٹھائیے طہارت کا بیان، قدوری اٹھائیے طہارت کا بیان، شرح وقایہ اٹھائیے طہارت کا بیان، ہدایہ اٹھائیے طہارت کا بیان، مسلم شریف اٹھائیے طہارت کا بیان، ترمذی شریف اٹھائیے طہارت کا بیان۔ لوگ کہتے تھے مولانا کب تک آپ لوگ استنجا کا بیان پڑھاتے رہیں گے، کب تک آپ لوگ پاکی کا بیان پڑھاتے رہیں گے، کب تک آپ لوگ صفائی کا بیان پڑھاتے رہیں گے؟ تو کل تک صرف درسگاہوں میں پڑھایا جاتا تھا، آج تو ہر ایک گھر اور آنگن میں پڑھایا جا رہا ہے، بتایا جا رہا ہے۔ جہاں پہ ساری دوائیاں دم توڑ دیتی ہیں وہیں سے مصطفیٰ جان رحمت کی سنت کام آتی ہے، وہیں سے مصطفیٰ جان رحمت کا دیا ہوا پیغام کام آتا ہے۔ لیکن آج ذرا سا سوچے اے لوگوں، آج ہم مسلمان ہیں مگر نبی کی سنت سے دور ہے، ہم مسلمان ہیں مگر نبی کی سیرت سے دور ہے، ہم مسلمان ہیں مگر مصطفیٰ جان رحمت کے کردار سے دور ہے۔ اس لیے ساری دنیا کی دولت ایک طرف اور مصطفیٰ جان رحمت سے ملی ہوئی سنت ایک۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلی حضرت، تعلیمات مصطفیٰ۔
हर शख्स को अपना काम ईमानदारी से करना चाहिए। ईमानदारी से काम करने के बाद मजदूरी जो मिलती है ना तो उसका हक अदा होता है। यकीनन हमारी और आपकी ये जिम्मेदारी है। पूरा मजमा मिलकर जरा एक बार दोनों हाथों को उठाकर प्यार से बोले या रसूल अल्लाह। और जरा थोड़ी सी आवाज ऊंची कीजिए, प्यार से बोलिए या रसूल अल्लाह। जरा गौर से सुनिए। अच्छा, वो जो नौजवान वहाँ पे 2-4-10 खड़े हैं, साहब वो बेचारा सोच रहा कि जींस पहने हैं, बैठेंगे तो पैंट गंदा हो जाएगा। जाहिर सी बात है, मैं भी उसकी मजबूरी समझता हूँ, बड़ा जेंटलमैन है, जाहिर सी बात है। लेकिन साहब दुनिया में कितने पढ़े लिखे लोग होंगे, क्या कोई मौलाए कायनात से भी ज्यादा पढ़ा लिखा होगा? क्या कोई शेरे खुदा से भी ज्यादा पढ़ा लिखा होगा? दुनिया में रसूलुल्लाह के बाद मौलाए कायनात से ज्यादा पढ़ा लिखा कोई मर्द नहीं है, और दुनिया में हजरत सैयदा फातिमा ज़हरा से ज्यादा पढ़ी लिखी कोई औरत नहीं है। लेकिन आपको मालूम है, शेरे खुदा को अबू तुराब भी नबी ने कहा है। मालूम है क्यों? साहब मस्जिद नबवी की जमीन है, आज की तरह संगे मरमर नहीं लगा है, टाइल्स का सिस्टम नहीं है, कोई निजाम नहीं, मिट्टी है। और हजरत मौला अली शेरे खुदा घर से निकलते हैं और जाकर के मस्जिद नबवी की मिट्टी वाली फर्श पे सो जाते हैं। जरा सोच, तू तो थोड़ा सा पढ़ लिख लिया तो अपने पाइप को गंदा करना नहीं चाहता, इसलिए तू बैठता नहीं है। लेकिन सोच, याद रखना, ये महफिल वो महफिल नहीं है जहां बैठने के बाद ये निस्बत वाली जगह है। इसलिए जरा मोहब्बत से बैठिए और प्यार से बैठिए। जो लोग पीछे खड़े हैं और आगे दाएं बाएं, अब मैं इसके बाद एक बार भी गुजारिश नहीं करूंगा, लेकिन साहब याद रखिए, मौलाए कायनात का वास्ता, जो भी नौजवान इधर उधर खड़े हैं उनसे मेरी गुजारिश है, कौम के नौजवानों कब तक भागते रहोगे? कब तक शराबी बनकर समाज में जीते रहोगे? कब तक औरतों पे जुल्म सितम के पहाड़ तोड़ते रहोगे? कब तक माँ बाप की नाफरमानी करते रहोगे? कब तक आज़ाने सुन सुनकर अपने बिस्तरों पे सोए रहोगे? कब तक कुरान को सिर्फ घरों में रखने वाला इंसान बनोगे? बताओ, क्या कुरान नहीं कहता, ऐ कुरान रखने वालों, अफला यतदब्बरूनल कुरान, कुरान रखते हो मगर कुरान में गौर व फिक्र नहीं करते। ईमानदारी से बताइए, बच्चा बच्चा कुरान का तर्जमा जानता हो या नहीं जानता हो, लेकिन आलमून सब पढ़ते हैं, तालमून सब जानते हैं। कुरान जगह जगह कहता है, आलमून ऐ इल्म वालों मेरी तरफ देखो, तालमून ऐ पढ़े लिखे लोगों मेरी तरफ देखो, यतफक्करून ओ फिक्र करने वालों लोगों जरा मेरी तरफ देखो। मैंने कहा, एक कुरान तू किससे गुफ्तगू कर रहा है? कुरान कहता है, मैं वो किताब हूँ कि जो मुझे पढ़ेगा कामयाब हो जाएगा। मैं अक्ल वालों के लिए हूँ, मैं तो इल्म वालों के लिए हूँ। अक्ल वाले मुझे पढ़ेंगे, कामयाबी उनके कदम को चूमेगी। मैंने कहा, साहब अक्ल वाले हैं कौन? तो डॉक्टर अख्तर परवाज हबीबी ने कहा, मौलाना तरक्की याफ्ता दौर है, सोच समझ करके बोलिए, आपको मालूम है अक्ल वाला कौन है? मैंने कहा, बताइए। कहा, जो बच्चा मैथ में सबसे ज्यादा माहिर हो उसे इल्म वाला, अक्ल वाला मान लिया जाएगा। मैंने कहा, फिर अक्ल वाले की पहचान कैसे होगी? कहा, सारे बच्चों को बैठाइए, मैथ में कंपटीशन कराइए, जिस बच्चे का गणित सबसे ज्यादा मजबूत हो, जो इल्म रियाजी में सबसे ज्यादा माहिर हो, जो मैथमेटिक्स में सबसे ज्यादा अक्लमंद हो, उसे अक्ल वाला मान लिया जाएगा। सारे अक्ल के पैमाने लेकर बच्चे बैठ गए। कहा, हाँ मौलाना, अक्ल मेरे पास है, अक्ल मेरे पास है, अक्ल मेरे पास है। मैंने कहा, साहब अक्ल की का पैमाना ये है कि मैथ मजबूत हो। यही वजह है जिस मौलाना का इल्म मीरास सबसे ज्यादा मजबूत हो उसे अक्ल वाला मान लिया जाता है। नहीं साहब, ये मौलाना बड़े ज़हीन है, इल्म मीरास में ये बड़े माहिर है, वरना अच्छे अच्छे लोग इल्म मीरास में पीछे हट जाते हैं। अब जाहिर सी बात है, गौर से सुनिएगा। मैंने कहा, साहब सारे अक्ल वाले बैठ गए, मैथमेटिक्स के जानकार बैठ गए। यही वजह है, साइंटिस्ट बनने के लिए मैथ कंपलसरी है, डॉक्टर बनने के लिए मैथ कंपलसरी है, इंजीनियर बनने के लिए मैथ कंपलसरी है। बच्चे बैठ गए। कहा, मैथ की शुरुआत कहां से होती है? एक बच्चा खड़ा हुआ, कहा, मौलाना गिनती से मैथ की शुरुआत होती है, गिनती से। बेटा क्या बात है, ये दोनों साथ आए थे, साथ जा रहे हैं,
माशाअल्लाह बहुत नेक लोग हैं। खैर ज़रूरत से जा रहे हो तो जाने दीजिए, लेकिन आप इत्मीनान और सुकून के साथ बैठिए। शैतान कभी नहीं चाहता कि साहब इंसान इत्मीनान और सुकून से अल्लाह और उसके रसूल के जिक्र की महफिल में बैठे। शैतान हमेशा वर्गलाता है और कहता है बैठे हो उठो चलो, साहब साथ लेकर हजारों को लेकर आइए, लेकिन जब मजमे से जाना हो तो अकेले जाइए, तन्हा जाइए। अगले को नबी की नात सुननी है, नबी का पैगाम सुनना है, आप उसे भी लेकर चले गए तो उसका गुनहगार कौन होगा, उसका जिम्मेदार कौन होगा। इसलिए साहब लाइए, जितने लोगों को लाना हो सब आए, सबका सवाब आपको मिलेगा, लेकिन किसी को लेकर के जाने की जरूरत नहीं है। इसलिए जरा मोहब्बत से बोले, प्यार से सुभान अल्लाह। मैं ये अर्ज कर रहा था, इस्लाम के मुकद्दस शहजादों जरा गौर से सुनना। बच्चे ने कहा मौलाना मैथ की शुरुआत गिनती से होती है। मैंने कहा साहब गिनना शुरू कीजिए। बच्चे ने गिनती लिखना शुरू किया, लिखा 1 2 3 4। मैंने कहा साहब लिखते जाइए, जब तक गिनती मुकम्मल नहीं हो लिखते रहना। अख्तर परवाज हबीबी बोल पड़े मौलाना जिंदगी खत्म हो जाएगी मगर कभी गिनती खत्म नहीं होगी। मैंने कहा क्यों? कहा 100 के बाद 101 होगा, 1000 के बाद 1001 होगा, लाख के बाद 1,00,001 होगा, करोड़ के बाद 1 करोड़ 1 होगा, अरब के बाद 1 अरब 1 होगा। इंसान की जिंदगी खत्म हो जाएगी मगर तुम खुदा की कुदरतों को गिन नहीं सकते हो, अल्लाह की नेमतों को शुमार नहीं कर सकते हो। सारी दुनिया के अक्लमंद मिलकर गिनती को मुकम्मल नहीं कर सकते। इसलिए कि 1450 बरस पहले कुरान ने कहा ओ अक्ल वालों सब मिल जाओ, फिर भी तुम खुदा की नेमतों का शुमार नहीं कर सकते, खुदा की नेमतों को तुम गिन नहीं सकते। अब सारी दुनिया के अक्ल वाले बैठ गए मगर आज तक तारों को कोई गिन नहीं पाया, आज तक सितारों को कोई गिन नहीं पाया। गिनना तेरे बस की बात नहीं है। मैंने कहा साहब अक्ल वालों समझ गए? कहा हाँ गिनती की इंतहा नहीं है। कहा तो गिनती की इब्तदा तो होगी। कहा हाँ इसकी इब्तदा तो मालूम है। कहा इब्तदा क्या है? कहा मौलाना 9 था, 9 से पहले 8 है, 8 से पहले 7 है, 7 से पहले 6 है, 6 से पहले 5 है, 5 से पहले 4 है, 4 से पहले 3 है, 3 से पहले 2 है, 2 से पहले 1 है। मैंने कहा 1 से पहले? कहा मौलाना 1 से पहले कुछ नहीं होता, 1 से पहले 0 होता है। मैंने कहा मतलब? कहा 1 से पहले कुछ नहीं था। कहा फिर ये 1 कहां से आया? कहा ये 1 अपने आप है। कहा 1 को किसने बनाया? कहा 1 को किसी ने नहीं बनाया, ये 1 अपने आप है। कहा फिर 2 को? कहा इसी 1 ने 2 को बनाया है। कहा इसी 1 ने 3 को बनाया है, इसी 1 ने 4 को बनाया है, इसी 1 ने 5 को बनाया है, इसी 1 ने 6 को बनाया है। कहा अगर वो 1 ना होता? कहा 1 ना होता तो ये 2 ना होते, अगर वो 1 ना होता तो ये 3 ना होते, अगर वो 1 ना होता तो ये 10 ना होते, अगर वो 1 ना होता तो ये 100 ना होते, अगर वो 1 ना होता तो ये 1000 ना होते, अगर वो 1 ना होता तो ये लाखों ना होते, अगर वो 1 ना होता तो ये करोड़ों ना होते। मैंने कहा तो बताओ ये करोड़ों ताकतवर है या वो 1 ताकतवर है? कहा मौलाना ये करोड़ों बनने वाले हैं और वो 1 बनाने वाला है, इसलिए करोड़ों ताकतवर नहीं बल्कि वही 1 है जो सबसे बड़ा ताकतवर है, वही 1 है जो सबसे बड़ा पावरफुल है, वही 1 है जो सबसे बड़ा शक्तिशाली है। साइंटिस्टों ने आज कहा, कुरान ने 1450 बरस पहले कहा, महबूब कह दीजिए कुल हो अल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। महबूब कह दीजिए अल्लाह 1 है, अल्लाह बेनियाज है, उसे किसी ने नहीं बनाया, उसने सारी कायनात को बनाया है। लहू माफिस समावाति व माफिल अर्द, जमीन और आसमान में जो कुछ भी है अपने आप नहीं, उसी खुदा के बनाने से है। जमीन बनी खुदा की मर्जी से, आसमां बना खुदा की मर्जी से, सूरज बना खुदा की मर्जी से, चांद बना खुदा की मर्जी से। ऐ कुरान तू बता, कुरान कहता है बड़ा ताकतवर है। इन्नल्लाह अला कुल्ले शैइन कदीर, बेशक अल्लाह हर शय पर कादिर है। अदना को चाहे तो आला बना दे, कतरा को चाहे तो दरिया। नारे तकबीर।